So strategy to crack NEET 2021 and the road ahead. So after giving the examination, obviously you would love to say that I have cracked the NEET, I have smashed NEET, I have cleared NEET, और ये सारी चीजें बोलने के लिए obviously your preparation should be up to mark. So obviously आपने ये 2 साल में you have worked hard, you have prepared for yourself, but from now on till the NEET examination, what should be your strategy? उसके कुछ important 5 pointers मैं discuss करूँगा. First one, the PYQs are very very important. जो NTA ने गाइडलाइंस रिलीज किया है उसमें इनडायरेक्टली दे हैव फोकस्ड ऑन द सिलेबस एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो 2020 का जो अगर नीट आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखोगे तो दे वर वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियरली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी ओनली, and the level of the examination was average, or I can say to some extent below average. मतलब it was not very 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 tough. ठीक है. तो आपका जो preparation है it should be entirely based on PYQs. So starting with the PYQs, when you do the previous year questions, start making the short notes out of them. तो जो भी questions आपने देखा है PYQs में, उसके basis पे whatever concept related to a particular chapter is there, just make sure that you note down the part based on the question. For example, let's say ये question है, an element has a body centered cubic BCC structure with a cell edge of 288 picometer, the atomic radius is. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you would require a relation between R and A for a BCC. Now वो एक पूरा टेबल है जिसमें R और A का रिलेशन SCC, BCC और FCC तीनों का डिस्कस किया है. उसके अलावा few of the important parameters for this 3 unit cells were also discussed. मतलब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो शॉर्ट नोट्स है that should be made in a way that anything which is related with this type of question should be solved by you. मतलब मान लो इसी लाइंस पे BCC की जगह FCC आ जाता है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो you will be able to solve that question also. So short notes preparation मतलब क्या? Looking at the question, whatever is the concept, go to that concept, revise the related stuff. Related stuff मतलब BCC आपने पढ़ लिया तो SCC और FCC भी पढ़ लो, so that overall if any type of question related to those unit cells come, you should be in a position to understand and solve it perfectly. ठीक है. तो PYQ बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गए आपका नीट 2021 में, तो यू वुड बी डेफिनेटली वेल प्रिपेयर्ड विद दैट. तो PYQs के थ्रू शॉर्ट नोट्स का जो प्रिपरेशन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा for the NEET 2021 specifically because of the scenario and the situation going on. Similarly, मान लो ये क्वेश्चन है which of the following set of molecules will have zero dipole moment. ये केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, किसका नॉन जीरो होता है, उसके ऊपर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए. तो मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाइपोल मोमेंट का एक पूरा पार्ट भी दिया है. तो कहने का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द टॉपिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, you should be well aware with that topic and thorough with that topic. मतलब उसके रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड वापस अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको वो सॉल्व करने आना ही चाहिए and you should not go wrong. That is what I am saying, PYQ based short notes preparation. Understand that. So PYQs from the MTG book. Anywhere PYQs तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे भी देखोगे आप सेम ही रहेगा. मैंने जो ऐप का लिंक शेयर किया उससे भी आप कर सकते हो. PYQs are हाँ सर. basically the previous year questions. They are going to be same, irrespective of whatever material you use. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Similarly, which of the following is a natural polymer? मतलब ये organic chemistry के related है. तो अब natural polymer इसमें cis 1,4 polyisoprene है जो कि natural rubber है. लेकिन इसके साथ साथ कौन से polymers natural है, कौन से synthetic है, monomer क्या है, polymer क्या है, उसका एक पूरा understanding आपको होना चाहिए.
So once again, looking at the question which has already been asked, ये 2020 के questions ही है जो मैंने यहाँ पर display किए हैं, नीट 2020 के questions है ये। तो इस question को लेकर उस particular topic से related जितनी भी चीजें हैं associated कि natural versus synthetic polymers कैसे differentiate करना है, वो आपको आना चाहिए। तो अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड वापस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी एट एन एडवांटेज। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट विद द पीवाईक्यूज मेक अ शॉर्ट नोट। हर क्वेश्चन के साथ हर टॉपिक के रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें या फिर इससे और क्या आ सकता है, अगर वो आपको समझ में आ गया एंड उसी के लाइंस पे आपका 2021 का पेपर आया तो आपको बहुत फायदा होगा। Please mark this, and this is true for all the three subjects physics, chemistry, and biology. PYQs for this year will play a very vital role, very, very important role. आप PYQs को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन PYQs के लाइंस पे अगर आपने अपना प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल बी स्कोरिंग 650 टू 680 प्लस। ये मैं दावा करके बोलता हूँ, अगर आपने PYQs प्रॉपरली किए एटलीस्ट लास्ट 10 to 12 years के, जितने कर सकते हो उतना बेटर है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नीट में तो एक ही अटेम्प्ट होता है, तो यू विल नॉट एक्चुअली टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दी पीवाईक्यूज। तो जितना ज्यादा कर सकते हो उतना बेटर है, बट पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस साल का पेपर भी 2020 के लाइंस पे ही आएगा, बिकॉज गिवन द सिचुएशन द एनटीए नोज दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट कोचिंग और द गाइडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए द पेपर विल नॉट बी वेरी वेरी टफ। जेई के भी प्रीवियस पेपर्स कुछ कुछ स्लॉट्स में डिफिकल्ट आए थे, बट बाकी ओवरऑल देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल वाज एवरेज ओनली। Second point, your revision should be based on strengthening the weak topics. मतलब आपने PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया, तो जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट these are the topics where I am confident and these are the topics which I am not confident with. So you will be able to identify your strengths and weaknesses. तो जो भी आपके weak topics हैं, make sure that you make them thorough. ठीक है, तो मान लो आप बीसीसी रिलेटेड या सॉलिड स्टेट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में और वो वाला टॉपिक आपको अभी भी क्लियर नहीं है, तो वो आपका बन गया वीक टॉपिक। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो आप उस वीक टॉपिक को स्ट्रेंथन करोगे। ठीक है, सो योर रिवीजन स्ट्रेटेजी शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द वीक टॉपिक्स। Third, revise NCERT thoroughly for inorganic chemistry. Inorganic is something जहाँ पर NCERT based questions आ सकते हैं, तो NCERT को specifically atomic structure, periodic table, S block, hydrogen, P block, DNF and coordination, ये पूरा जो inorganic है make sure आप NCERT को thoroughly अच्छे से go through कर लो। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक के लिए वॉट एवर आई हैव गिवन दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इट इज मोर देन द एनसीईआरटी एनीवेज। एंड फिजिकल इज समथिंग जहां पर एनसीईआरटी इतना कोई हेल्प नहीं करेगा। द मोर यू सॉल्व द मोर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन द फिजिकल केमिस्ट्री। और एक चीज, द पीओसी पार्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिडिक एंड द बेसिक रेडिकल्स, वो वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू नॉट मिस आउट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज एक दो एमसीक्यू भी अगर उससे रिलेटेड आ जाते हैं तो वो आपके लिए एक्चुअली बोनस है। वो पार्ट अगर आपने टच नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट एनालिसिस वाला पार्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों के लिए। Then practice important questions and give combo and mock tests seriously. तो practicing important question is nothing but जो questions हमने क्लास में सॉल्व किए हैं और जहाँ पर मैंने स्टार मार्क करवाया या बोला कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या कुछ उसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, या ऑर्गेनिक रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट मैकेनिज्म है, या इनऑर्गेनिक रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेक श्योर आप उन चैप्टर्स के कंप्लीट कर लो। आपको वापस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जिस चैप्टर में 100 क्वेश्चन थे वहाँ पर आपको 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
because 75 will be those type of question which you will be thorough with. 25 questions हमेशा ऐसे निकलेंगे, 25% questions जहाँ पर आपको वापस उसको सॉल्व करके या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेगी. ठीक है? So apart from that, a combo and the mock test which are being arranged, please give them seriously. Utter seriousness जैसा आपका नीट में होगा, जो टाइम स्लॉट नीट का है वही टाइम स्लॉट में वैसे हो ही रहा है. ठीक है? तो अगर उसके बेसिस पे देखो दोगे तो थिंग्स विल डेफिनेटली improve and it will help you a lot. फाइनली ईट हेल्दी, एक्सरसाइज फॉर 20 to 30 minutes, बहुत इंपॉर्टेंट है. 20 से 30 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर योर ओवरऑल concentration increase. Sleep well and increase the concentration with all these things. And finally, aspire and aim to crack this examination with a very high score. Mark my words, इस साल अगर आपने अच्छे से नीट दे दिया तो गेटिंग अ हाई स्कोर इज प्रोबेबल. इन केस नहीं आता है, अगर आप रिपीट करते हो और नेक्स्ट ईयर 2020 में जो नीट दोगे उसका डेफिनेटली एक पूरा अलग ही पैटर्न रहेगा. पैटर्न इन द सेंस अलग ही डिफिकल्टी लेवल रहेगा. इस साल एक्चुअली यू आर एन एट एडवांटेज बिकॉज द पेपर लेवल विल नॉट बिकम दैट टफ. दिस इज फॉर श्योर. इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो. पुट योर हार्ड वर्क, पुट योर गिव योर 100%, and definitely you can come out with flying colors with this 2021 meet. That's all from my side.